Basically, you will have in your mind what is budget. Why is it necessary in for our country, and how it come into force when this budget passed? Basically, you are not aware of all these things. I hope that when you have got this notice, you have tried to get to know what is budget. I might think someone of you have searched like that what is budget and how it is implemented. There are many points that you will have to get to know today. Your teachers, your moderator, your path sower, your admirer is present here, that they will elaborately open it, the budget, when it is passed, when it come to force, how it is implemented. These all things will be discussed here. Besides this, apart from this one, if you get to know something or some points which you do not understand, which that will be passed from you, you try to get to know from your teachers. They will elaborate you, they will try to make you understand, they will make you understand. If you have any question in between, do not try to indulge in that one. Wait for the time, wait for the question and section, and at that time you will get your query, you will get your questions answered, and finally I hope that you will be understand. This day is finally to understand your union budget. So I hope that let's start now. Before that, I would like to invite any one of you, please come up here and start the session. Start the session like that. You will have why you are present here, why you are gathered here, and if you would like to say anything on budget, that you may say, and then your teacher will start. To all of you present in this moment, this is Sonali Sharma of Standard 9C standing before you to explain my views on union budget. Guys, do you know that who presents the budget in the parliament? Very few. The union budget is presented by the finance minister in the parliament. My next point is that Nirmala Sitharaman has presented the budget for how many years now? 3 years. Right. This was Sitharaman's third budget under the National Democratic Alliance government led by Prime Minister Narendra Modi. Thanks a lot. So I would like to ask you about advantage and disadvantage of the thing. So whatever we are doing and whatever news we are gathering from other resources, for example, budget, some people in some community are not very much satisfied with this, and some are very, very satisfied. All eyes were waiting for the budget presented by our Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1st for 2021-22.
a very warm good morning to faculty members, management, and my dear students, including non-teaching staffs of Cambridge Public School. So the reason we gathered over here to discuss the point of view, and this is not a debate, this is not a debatable topic. I'm here, Dr. Rajiv, English faculty, who will be giving you the introduction of budget, and also I'll be explaining you what other teachers will be doing and what the topics they will be mentioning. So let's start, and I'll be telling you about the presentation. That after presentation there will be questionnaire session. So students who are having a doubt can write down the questions, and after all the teachers will be finished speaking, then you are allowed to ask any questions, and then the teacher will be replying you. So basically our budget proposals for 2021 and 22 rest upon 6 important pillars, and those pillars are health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development of aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, minimum government and maximum governance. So these are the topics the teachers will be discussing upon. And I will be telling you the subtopics and the key points what the teachers will be discussing. And the subtopics for government reforms are increase in borrowing limits of states, privatization of public sector enterprise. This will be point number 1. Point number 2, from agriculture and allied sectors, there will be emergency working capital and concessional credit boost for farmers, agriculture market reforms, extending Swamitra schemes for all states and United Territories, 1,000 more mandis to be integrated. Now if we talk about industry, so you will be knowing the depth knowledge about collateral free loans for business, PM Garib Kalyan Yojana. Now let's move to migrant workers, one nation, one card, which you have already heard about it. Next one is free food grain supply to migrants. Social security benefits will be extended. If we talk about energy, in energy, liquidity support for discoms and commercial coal mining. Now the next part will be about social sector. In social sector, National Digital Health Blueprint, technology-driven education. Some teachers also available who will be telling you about health, and mainly we should focus upon the health of 137%. Research and development. National Research Foundation with outlay of Indian rupees 50,000 crore over 5 years. National Language Translation Mission to boost internet access with high speed. Deep Ocean Mission for ocean exploration and biodiversity conservation. Then infrastructure. National Rail Plans aims at 100% electrification of board gauges by 2023 and developing adequate rail infrastructure by 2030 and cater to project traffic needs up to 2050. And there will be also increased modal share of rail from 27% to 45%. In urban development, Metro Light and Metro Neo for Tier 2 and peripherals of Tier 1 cities. Voluntary vehicle scrapping policy, Indian rupees 2,217 crore for 42 urban centers to tackle air pollution. So these were the main key factors of budget, what I have already explained you. So I would like to tell you about the different faculty of teaching over here of Cambridge Public School who are present over here, and let me introduce you with every teachers over here and with their topics. So first there will be Mr. Om Prakash, who will be giving the focus upon minimum government and maximum governance, physical and financial capital and infrastructure.
Secondly, there will be Mr. Sandeep Kumar, who will be explaining you about 5 years plan. Third, there will be Mr. Vivek Kumar, who will be explaining health and well-being. After that, there will be Mr. Abhay Sinha, who will be telling cover story of budget. After that, there will be Mr. Alok Kumar, who will be telling about information and technology. But due to some reason, I regret to say that he is not present right now. So this topic will be dealt by other teachers. Next, there will be Mr. Shubham Bhardwaj, who will be telling about employment. Next, there will be Mr. Nagendra Sharma, who will be telling about research and development. Then there will be Mr. Devendra Shah, who will be telling reintegrating human capital, innovation and research and development. And last but not least, there will be the name of Mr. Prem Kumar, who will be giving a focus upon inclusive development for aspirational India. That's all from my side. Now I would like to invite teachers sequence wise, and you can invite the next number of teachers by yourself. Thank you very much. Enjoy yourself. Students, budget is quite important for one and all. Each and every household is covered by budget. As well, our country is enormous large country, and budget is quite important for whole the world, whole the globe. It affects whole the globe. Now, one Arab 30 crore population is under the banner, under the umbrella of this budget, so that you can analyze the importance of this enormous budget. Now, this budget is quite important because so vast population is covered by this budget. Now, as you know, what exactly is a budget report? आप जानना चाहेंगे कि ये बजट रिपोर्ट है क्या? अभी इस बजट के अंदर अगर हम 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करते हैं, the budget is a report presented by the government. It is a report of the government finances which include revenues and outlays. अगर हम कम शब्दों में बोले तो इनकम, रेजिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, consolidated statement of raising and income, and expenditure is consolidated statement of these two factors is termed as budget. So that this is the minimum case. इसको एनालाइज करने के लिए इतना बड़ा सेमिनार का क्या जरूरत है? इस स्कूल के अंदर पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर को तो एनालाइज करना है. दैट्स ऑल. दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग. ऐसा लगता है आप लोगों को? क्यों नहीं लगता है? इनकम, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम, पहले हम ये असेसमेंट करते हैं, उसके बाद व्हाट आर द आवर प्रायोरिटी टू इन्वेस्ट दैट रेवेन्यू, दैट फाइनेंस. यू नो, आपके घर में भी जो है बजट है, अभी आप देते हैं कि सिंगल सोर्स है, डबल सोर्स है, ट्रिपल सोर्स है इनकम के, और उस इनकम को एक्युमुलेट करके बस आपको इन्वेस्ट कर देना है. दैट्स ऑल. आपको फूड स्टफ खरीदने हैं, आपको एजुकेशन में जाना है, आपको कोई बिजनेस में लगाना है, आपको कोई फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट करना है. दिस इज सिंपल केस. सो दैट इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने का क्या जरूरत है? हैव यू एनी क्वेश्चन? I am the faculty of social science. You have to ask some questions. If you are prepared to ask some questions? No, absolutely no. Yes, you can raise question. Sir, ये इतना ज्यादा क्यों? Okay? Thus the budget can be defined as the most comprehensive report
most comprehensive report of the government's finances in which revenues from all the sources and the outlays of all activities are consolidated. हम इसको जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं रेवेन्यू जनरेट करने के फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किए जाते हैं वहां से हम रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। उसके बाद उसका नेशनल लेवल पे एकम्युलेशन होता है और उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रायोरिटीज के एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं कि अभी मेरे इन्वेस्टमेंट के कितने सारे पोर्टफोलियोज निकल रहे हैं। बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऐसे भी जो होते हैं वो एक्सीडेंटल पोर्टफोलियो निकल आते हैं। व्हाट आर द एक्सीडेंटल पोर्टफोलियोज? कैन यू इमेजिन? वी हैव फेस्ड अ ग्रेट पेंडेमिक in this year. This is called accidental expenditure. 35,000 crore is allocated for countering this pandemic. You know, पहले कोई भी बात नहीं था इसका। 35,000 करोड़ अभी ऐसा बोल के इतना बड़ा खर्चा निकल आया जिसका हमारा को कोई अंदाजा नहीं था। अब बोलो क्या करेंगे? यूनियन बजट। सो हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वैसे बजट हमारे देश के अंदर बहुत सारे होते हैं। एक तो हमारा यूनियन बजट है और सभी स्टेट्स के अंदर अपना डिफरेंट बजट होता है जिन्हें हम स्टेट बजट के नाम से जानते हैं। अब आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज किया गया यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट। अगर फेडरल ऑफ स्टेट यूज किया जाता तो पावर एक तरह से शिफ्ट होती स्टेट्स की तरफ। बजट टर्म यूज किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। इस टर्म ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि पावर शिफ्ट कहां होगी? यूनियन गवर्नमेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। सो हमारे देश का जितना भी एक्सपेंडिचर्स होता है उसका बहुत बड़ा परसेंट हमारी गवर्नमेंट यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूज करती है, वो यूटिलाइज करती है, वो शेयर का एलोकेशंस करती है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं बजट होता क्या है ना। सो बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड है, बुजेट। ओके, फ्रेंच वर्ड है बुजेट। इसका मतलब होता है लेदर बैग। लेदर बैग एक बार क्या हुआ था 1789 में ब्रिटिश जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पार्लियामेंट चले गए। उन्होंने उनके पास एक लेदर बैग था एंड उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट डे अखबारों के अंदर इनका मजाक उड़ाया गया कि नाउ बजट इज ओपन। ठीक है, मतलब मजाक की तरह कि बजट ओपन हो रहा है, चमड़े का जो बैग है वो ओपन हो रहा है और करने की बात धीरे कि हमारा जो बजट है अब यूज किया जाएगा। सो हमारा अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जो फर्स्ट बजट था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो हुआ था 26 नवंबर 1947। ओके, 26 नवंबर 1947 और हमारे जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था आर शंमुगम। बजट इंपॉर्टेंट होता है क्यों? अगर गवर्नमेंट होती है क्यों बजट बनाती है हर साल, क्यों इस पर इतना डिस्कशन चलता है? हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमें कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से रूल की जाती है। हम बेसिकली जो पैसा गवर्नमेंट जो है बेसिकली कोई खास तौर पे कोई काम नहीं करती, उससे अपना एक्सपेंडिचर चाहिए। सिंपली कहां से लेगी वो एक्सपेंडिचर? हम लोगों से। तो बजट वो एक मेन सोर्स है जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि देखिए हम आपका जो पैसा है ले रहे हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर से और ये पैसा आप ही के ऊपर खर्च किया जाएगा और इस पैसे का यूज देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। और आपको पता ही होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है बिल्स का, ऑर्डरी बिल है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। तो ये जो बजट है इसी मनी बिल का एक पार्ट है। ये जो बजट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर गवर्नमेंट पास ना करवा पाती इस बजट को तो क्या होता है? गवर्नमेंट गिर जाती है हमारी। क्यों?
क्योंकि सिंपली जानता है लोगों को कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमारे दूसरे जो लीडर्स हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फेथ नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है। लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं गवर्नमेंट पे कर पा रहे हैं और मनी इश्यूज इतने ज्यादा है कि देश का खर्चा भी सरकार चला नहीं पाती। इसलिए गवर्नमेंट को उस टाइम से रिजाइन देना पड़ जाता है अगर बजट सेशन पास नहीं होता, अगर बजट जो है बजट सेशन में पास नहीं हो पाता है। तो डिफरेंट तरीके से लगभग लाइन चलता रहता है। जैसे आपको पता है कि अब पहले रेल बजट भी अलग हुआ करता था, इस बार रेल बजट को हमारे बजट के अंदर ही शामिल कर लिया गया और इस तरह से अब पूरा एक ही बजट रह गया है रियल बजट के अंदर। तो एक गहराई है आपके अंदर बजट को समझने की। आपके जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नया सब्जेक्ट, कुछ ऐसा जिससे आप अनजान हो। तो चलिए मैं कुछ आपके जानकारी में कुछ और ऐड कर दूं, इजाफा कर दूं। तो आप अब तक तो बजट आप समझ रहे हैं कि बजट के बारे में क्या होता है, जान गए। आमतौर पर आज जो बजट होता है और पहले जो बजट था, तो हम लोग 3 प्रकार के बजट के बारे में जानते हैं। एक पहले सरप्लस बजट का नाम आप सुने होंगे। सरप्लस बजट वो होता था जिसमें आमदनी 1 रुपया होता था और खर्च जो है 50 पैसे होते थे, अठन्नी होता था, उसको सरप्लस बजट कहा जाता है। एक बजट होता है बैलेंस बजट, यानी कि आपका आमदनी भी 1 रुपया और खर्च भी 1 ही रुपया। और एक होता है डिफिसिट बजट, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली बात। ठीक है, तो आजकल डिफिसिट बजट ही प्रस्तुत किया जाता है और शायद पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं, रॉबर्ट वॉलपोल का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपकी जानकारी को कुछ थोड़ा और बढ़ा दूं। तो रॉबर्ट वॉलपोल वो पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1755 का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उसके बाद अभी जो ये बजट शब्द आप लोग सुन रहे हैं, बजट, और ये बजट शब्द एक फ्रेंच शब्द है। As you all know, this is the very first time that government has introduced the budget with papered, okay, digital budget. It was introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman. And if you talk about the employment effect of this budget, and in this situation, it becomes completely important. So after COVID, everyone knows the economical condition across the world is completely ruptured, declined. And in this situation, this budget play an important role, not for only India, it's also for our international relations. And in considering this thing in mind, our Finance Minister introduced this budget, keeping in her mind how it could be impactful for employment. So before telling further, I will introduce some points that already you know. First thing, the startup program. What the government has done in this sector? He simply introduced the another term, PLIS, that is Production Linked Incentive Scheme. How it would strengthen the economics and also the employment.
So in this PLIS means production linked incentive scheme. So what is it? The government will welcome all the different types of startup in India, and it will give the tax holiday. What is tax holiday? There is a certain gap when you start your business. The government will give you some time. After the given time, you will allowed to pay the tax. Means starting, you can say the subsidiary year, subsidiary time the government will give, so that is in advance. So it is a very good thing that at least the new company would try to come in India or take the startups in India, because it will be exempted from tax for given time interval, at least 2 years, 3 years. Second one, MSME. You all know what to say. Micro, small, medium enterprises. You don't know. So I think being a 10th class student, you should be aware of this thing. This is micro, small, medium enterprises, means the economical, or you can say the industry of India society is divided in these categories at least. This is called the smaller part of the industries, in which micro, medium and a small industry was set up. All the different, like service sector, whether it is manufacturing sector, all come together in this MSME. And we have different ministry for this MSME. So what the government has done in this COVID situation, he has introduced and he has focused on two major sector of the economic. First one, cotton industry, means textile industry, and that will help to make the ground for the unemployed. Means the textile industry, and after that medical industry is really the largest sector who, you can say, employed more and more persons in their sectors. And it is very good for us that after COVID-19, 2 lakh new companies registered under MSME. That will help to provide the employment. 2 lakh new company introduced under the MSME. You already know about the FDI investment. So before knowing FDI, first we need to understand that from where we get government, means from where the government gets income, and in what sector they are spending the money. We need to understand this thing. पैसे आते कहाँ से हैं और पैसे जा कहाँ रहे हैं. So if you see that data, you will get all these things that सबसे ज्यादा जो पैसे आते हैं वो लोन से आते हैं गवर्नमेंट. दूसरी चीज है इंटरेस्ट से, लोन से आते हैं, सबसे ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं वहां. अनदर पॉइंट, और सबसे ज्यादा पैसे जो खर्च भी होते हैं वो लोन पे. उसके बाद आते हैं पहला क्या है, उसके बाद फिर टैक्सेस जो आए हैं उस पे आते हैं गवर्नमेंट. वो इनकम का सोर्स है. मीन्स फर्स्ट कौन, लोन, फिर आपका जीएसटी, आईटीआर और कॉर्पोरेट टैक्स. आईटीआर समझ में आता होगा, बस बेसिकली यही समझिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप पे करते हैं उसके. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, लोन, टैक्स, आईटीआर एंड GST including tax. And the next one is corporate tax. Corporate tax क्या होता है? जो बड़े बड़े कंपनियां, ऐसा नहीं मतलब छोटे मोटे दुकान, ये बड़ी कंपनियां जो हैं, ठीक है, टाटा हो गई या फिर और रिलायंस है, ये कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं बाकी सारे टैक्सेस के अलावा. तो ये मेजर सेगमेंट है. और अगर ये हमारे इनकम का अच्छा सोर्स होगा, डेफिनेटली हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये सेक्टर हमारा स्ट्रांग हो.
ठीक है। तो इसके लिए भी क्या किया गया है, इसके लिए भी एक सिस्टम लाया गया है कि बेसिकली अगर इन सारे कंपनियों को क्या किया जाएगा कि बेसिकली हर एक जगह पे जब वो स्टार्टअप करने जाएंगे तो वो उसी बिहार में वहां पर क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है सारे लोग, प्राइवेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और नया टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे झेल पाएगी आफ्टर कोविड? ऑब्वियसली दे नीड मोर एंड मोर मनी, तभी चीजें सही हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने प्लान क्या किया कि एफडीआई उन्होंने ज्यादा उसमें प्रिविलेज दिए हैं। ठीक है, वहां पर 74% तक वहां पर इंश्योरेंस करवाए हैं, ठीक है, एफडीआई को। तो बेसिकली अब उनका फोकस किस पे है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पैसे आए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंडिया में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे तो खुद ब खुद पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोविड के कारण सारी चीजें क्या हो रखी, बिल्कुल स्लो हो रही। तो इनके लिए गवर्नमेंट के लिए अभी का जो सिचुएशन है वो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट सही शांति सर्वसर्वे हमारी ओर से आप सबको कोशा जीवन की शुभकामनाएं हैं कि आप सभी भावी समय के लिए एक देश की सुंदर नागरिक, सामाजिकता, निर्वहन, कार्य प्रेषण और अनुमान के शरीक सामंजस्य पीढ़ियों में माने जाते हैं। आपके कंधों पर देश की इस रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी गई हैं। आप अभी जिस प्रकार की बातें भारतीय बजट के संबंध में तरह तरह की विचारों के साथ प्रेषण कर रही हैं, खैर आपका चुनाव विभाग में दूसरे की इजाजत भी दी गई है, लेकिन इससे लगाए जो प्रेषण है वो अगर आप विषय शिक्षक से इसकी जानकारी लें कहीं ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हम सभी को इस बजट में, सेमिनार में एक ही उद्देश्य है, आपकी शिक्षा को प्रेरित करना, आपकी शिक्षा प्रेरित करना, आपके जिम्मेवारियों को जो है मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं हमारी 2021 और 22 की बजट 1 फरवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किए हैं, जिसमें तत्काल हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्याएं सामने खड़ी हैं, जिसे आप संक्रमण काल के तहत जानते हैं। एक कोविड की समस्या हम सबको जो है अपने गिरफ्त में ले चुकी है। देश विदेश सब लोग इससे आहत हो चुके हैं। फिर भी हम सभी इस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को धैर्य और संयम के साथ जो है इसका कुशल निर्वहन किया है, जिसके लिए हमारी देश की जनता, हमारी देश की भावी पीढ़ियां सब मंगलमय शुभकामना के पात्र हैं। इसी के साथ साथ में एक टॉपिक्स मुझे भी मिली है, वो टॉपिक्स का नाम है रिसर्च और अनुसंधान। हाँ, हमको टॉपिक्स मिली है, प्रयोजन मिला है, उसको हम लोग प्रयोजन की हिंदी में कहते हैं, प्रयोजन कही जाती है। इस बजट को हम लोग नवाचार के नाम से जानते हैं। मुझे एक नवाचारी के तहत एक परिप्रेक्ष्य का अध्यापन के लिए मिला है, रिसर्च और अनुसंधान। आज हमारी नई दिल्ली में बैठी सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने, निर्मला जी ने
जो बजट पेश किए हैं देश के नवाचार को बढ़ाने के लिए, वो हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 50,000 करोड़ से इस परिबजट को 5 वर्षों के लिए आने वाले जितनी भी समस्याएं होगी उसका हर हाल में जो है समाधान किया जाएगा। I hope we dealing with theme inclusive development for the Islam, India and connectivity. The main capital. स्पेशल इंडिया के लिए समावेशी विकास और मानव पूंजी को प्रज्वलित करना। The financial minister said that the national education policy NEP announced secretary that 15,000 school will be the added to strengthen NEP completing. वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छा स्वागत हुआ है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों का जो है गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। 100 न्यू सैनिक स्कूल will be set up in partnership with the NGO, private school, state। उन्होंने यह भी घोषणा की गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ सरकारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। Set up Higher Education Commission of India and in the umbrella body having 4 separate bodies for the standard setting. मंत्री ने मानक सेटिंग, मानक इंडेक्स और वित्त पोषण के लिए 4 अलग-अलग कानूनों और शिक्षा आयोग की स्थापना की। लद्दाख में समग्र शिक्षा के लिए सरकार ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव किया। गवर्नमेंट हैज नेशनल इंडिया यानी भारत की आकांक्षाएं, यानी कि भारत के सपने क्या है। तो देखिए, आज हम जानते हैं कि इंडिया के 2 पिलर्स हैं, मैन एंड वुमेन। 49% वुमेन, 51% मैन। और हमारा देश यंग है, युवा है, और युवा का सपना क्या होता है? द फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बेस्ट एजुकेशन एंड गुड हेल्थ केयर। तो ये जो गवर्नमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस बजट को देखिएगा तो लोगों का कहना है कि हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में आपको कुछ बेनिफिट्स दिखाऊंगा और आई विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आल्सो फॉर श्योर। सो द फर्स्ट थिंग, एस्पिरेशंस। तो अभी हम पता है कि यूथ एस्पिरेशंस, हमें क्या चाहिए? एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। और जैसा कि आप सर ने बताया कि 1500 न्यू सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और देखिए, सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं होगा। अभी जो क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है। अभी क्या है कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, फनी पार्ट है, कोरोना में हम लोग 9 महीने 11 महीने अपने घर में सो रहे थे और बजट आया और कहा गया इस तरह से कि एक बैट्समैन जो 9 महीने सो रहा है, जॉब फील्ड में ओपनिंग बैटिंग करना शुरू कर। दिस वाज बजट, मतलब हमारे जगने से पहले एक नया पॉलिसी आ गया था। सो इस गवर्नमेंट में न्यू पॉलिसीज जो भी आई है, मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं इकोनॉमिक्स की, बट मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ।
गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जिसके अंतर्गत अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलेगा। यू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन? सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया तो गवर्नमेंट 25% उसमें इंक्लूजन देगी, मतलब आपको वेवर ऑफ देगी, यानी कि आपको सिर्फ 75,000 चुकाने होंगे, जो कि पहले 15% था, अभी 25%। और अगर ये लोन एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लिया जाएगा तो इसमें बहुत कम पेपर वर्क होगा, मींस रिड्यूस पेपर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब फिशरीज हो गया, मछली पालन हो गया, या क्या उसको बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन। स्मॉल स्केल का मतलब है कि कल के डेट में तुम कुछ अपना स्मॉल, जैसे मान लो कि अगरबत्ती का ही बिजनेस करना चाहते हो, डिपेंड करता है कि 2 लाख से लेकर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक को मान सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो, किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए 3-4 चीजों बेसिक्स की जरूरत होती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन। अगर रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाती है तो अपने आप स्टेट का डेवलपमेंट होने लगता है, बिकॉज अगर रोड्स बनेंगे तो उसके रोड साइड बिल्डिंग्स बनेंगी, मॉल्स बनेंगे, शोरूम्स बनेंगे, और वहां से क्या होगा, नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट होगी। तो मतलब बहुत लोगों ने कहा कि सरकार ने बेच दिया पूंजीपतियों के हाथ से। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट यहाँ पूंजीपति भी, बस ये सोचिए कि मुझे ही किसी ने पैसे दे दिए और कहा बिजनेस कीजिए। तो अगर मैं इकलौता बिजनेस करूंगा तो क्या अपने साथ 4 लोगों को जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा? इन दैट केस मेरा बिजनेस बड़ा होगा तो 4 से 14 और 14 से 40 फिर 40,000 लोग भी होंगे। आपने टाटा इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज का नाम सुना होगा। टाटा इंडस्ट्रीज और कंपनीज पूरे अपने देश के जीडीपी का 6% के लिए डोनेट करते हैं, इट इज इक्वल टू द टोटल कैलकुलेशन ऑफ बजट ऑफ असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा।